Do not underestimate the power of education. It was a wonderful experience visiting the school. The school has a refreshing, energetic, and spirited feel to it. It's fantastic to see that the leadership team is so invested in providing Cambridge education at such a distant location away from the city. Hi Sneha. Hi. How are you? Good. Hi Anaya. Hi. और बता कैसा चल रहा है? अरे सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ इज गुड। इसकी ऑनलाइन स्कूलिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। कौन से स्कूल में पढ़ती है अनाया? स्विस इंटरनेशनल। वैसे भी आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन ही है, सारे स्कूल तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। Good evening, everybody. Welcome to the season 2 for the brilliant Boiser event. We had a fantastic set of speakers this time. I think season 2 mein jo hamare speakers hai, we had 3 doctors who came in. One of the doctors spoke about the psychiatric issues with children and early detection. एक डॉक्टर ने हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया, एक डॉक्टर ने हमें होम्योपैथी एंड द रोल ऑफ होम्योपैथी इन प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बताया. So much information, such a loaded session. बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे मेल किया है और they send me text messages about how much they've learned. And even on Facebook, हमारे Facebook groups or Facebook streams पे more than 3,000 people have watched these streams. So we're so happy that parents are able to see these and parents are able to learn from it. And today we have a very good speaker. He's talking about, because जब हमारा season 1 हुआ वो time पे we had a few parents जिन्होंने हमें बताया कि can we have sessions on teenagers के बारे में, कुछ teenagers के साथ कैसे बात कर सकते हैं, teenagers के बारे में हम टीनेजर्स को कैसे हम समझा सकते हैं, टीनेजर्स को कैसे हम इंस्पायर कर सकते हैं, टीनेजर्स का बिहेवियर कैसा हम चेंज कर सकते हैं, या टीनेजर्स हमारे जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं. सो मेनी थिंग्स that play in. And one of our speakers today had attended the session 1 and he told us that he can definitely add value. वो contribute कर सकते हैं बोईसर और पालघर के community को in terms of कैसे हम as parents हमारे teenage बच्चों को संभाल सकते हैं और बात कर सकते हैं. Some very interesting points today. I met this gentleman, Mr. P.S. Rao, in a very high impact workshop. मैं उनसे मिला वहाँ पे. He's part of the International Association of Facilitators. तो वो काफी सारा training और facilitation करते हैं. And he's from Boisar, so we should be very happy कि हमारे बीच में we have somebody like that. So not just session, लेकिन session के बाद भी अगर आप उनके साथ connect करना चाहोगे and get more advice or get more sessions from him,
in your school or in your organization, then please feel free to get in touch with such wonderful people. These are the hidden gems of Boiser, and we are happy ki sir is with us today. I hope that you will learn as much as you can from this session. Will have your questions ready. जितने भी आपके पास questions होंगे, you want to think through that. I've changed the perspective because you want to think through from a different perspective about how you can help your children. So use the chat box today. Today is the last talk for season 2, the last and final talk. So अगर आपके पास कोई friends है जिसके बच्चे 13 years and above है या 10 years and above है, this will be a very helpful session. Please ask them to come and join. We have quite a few people on our Zoom session already. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब 7 is the new 17. मतलब अगर आपका बच्चा 7, 8, 9 साल का है तो भी they've started behaving like teenagers. So I think as parents, whatever age हमारे बच्चे हैं, we need to make sure that we are in a position to help them, we are in a position to serve them, and we are in a position to ensure that they bloom and do well in their life. Without further ado, I'd like to call upon Mr. P.S. Rao. It would be great if you can come in. And yes, adding you to the spotlight, sir. Mr. Rao, good evening, and thank you for accepting to speak at the Brilliant Boiser Season 2. I'm going to excuse myself, and the stage is all yours, sir. Thank you. Thank you, Billy, sir. And I'm really very happy to be here with you all. Thank you very much. Hope I am audible, Billy, sir? Yes, sir, I can hear you. Fine. First of all, I'm really thankful and really appreciate your initiative that Brilliant Boiser Talks has started. I think I have never heard these type of continuous talks. And here I am since last 25 years in Boiser. Thank you very much. Wonderful, this initiative. So it's all learning sessions. It's all window to the world. And I'm very happy to be here with you all, with you and all those participants here. A very good evening to all of you. सबको मेरा नमस्ते. और साल के इस अंत में हम लोग सब मिल रहे हैं. कभी-कभी कई लोग बोलते हैं सर ये साल बहुत कठिन गया. हो सकता है थोड़ा क्रिटिकल था, थोड़ा टेंशन था, बट दोस्त आज हम आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी कम बात नहीं है. हाँ, आज हम स्वस्थ हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, ये क्या कम खुशी की बात है. थैंक यू गॉड. वी आर हियर हैप्पीली लिसनिंग टू ईच अदर्स, है ना. सो मे बी शायद क्रिटिकल था, बट वी मस्ट हैव लर्नड, एवरीबॉडी हियर मस्ट हैव लर्नड सो मेनी न्यू थिंग्स आल्सो इन दिस कोविड सिचुएशंस, है ना. मैं खुद कई चीजें नहीं सीखा हूं. मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसे ऑनलाइन वेबिनार करूंगा. मैं तो इंडिविजुअल प्लांट में जाता था, देवास, इंदौर, गोवा, सिक्किम, वहां पे लाइव ट्रेनिंग्स होती थी. तो कभी तो हमने उम्मीद ही नहीं किया, बट सडनली वो जो कनेक्शन था टूट गया. नहीं, नाउ वी कांट डू. सो सडनली हमने भी फिर सीखा ये सब ऑनलाइन कैसे करना है. So all those somewhere, some time in life, all those hurdles are basically एक learning points, हमको एक सीखने में मदद करते हैं. और उसी की बदौलत मैं आज आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ. मुझे आप सबसे मिलकर, आप सबसे बातचीत कर बहुत अच्छा लग रहा है. और ये सेशन करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा. और इसमें हम आपस में बातचीत भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हो गए, आप भी उसको रखिए, पार करके रखिए, बीच बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना. और ये सेशन मोस्टली मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करने की कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको लैंग्वेज के इससे प्रॉब्लम ना हो. गुड. सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन हियर. Yes. Hope you're able to see my screen. Good. आप चैट बॉक्स से भी लिख सकते हैं कि यस, क्योंकि मुझे शायद पता नहीं लगेगा.
या कुछ कोई बोल के भी बता सकता है सर आई कैन सी द स्क्रीन। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज करना सर आई एम नॉट ऑडिबल, या कभी कभी डू यू एबल टू लिसन टू मी? Ankita, thank you very much. Yes, okay, fine. So, welcome to this session. My name is Suryanand Rao. मुझे PS राव भी कहते हैं। I am a science graduate. उसके बाद फिर मैंने ISTD इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये एक HRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग क्या है, कोचिंग क्या है, काउंसलिंग क्या है, ये सब हमको सिखाया जाता है। और उसके बाद फिर मैंने टाटा स्टील में करीब 18 साल मैंने काम किया है। बोईसर तारापुर एक वंडरफुल इंडस्ट्रियल एरिया है और जहां पर मैं क्वालिटी कंट्रोल में काम करता था। टाटा स्टील एक सुंदर कंपनी है जहां पर मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप कुछ पैसे तो कमाते हैं बट काफी कुछ आप उससे सीख पाते हैं। ये एक बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है और वाकई एक टाटा स्टील ऐसी कंपनी है जहां पर आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हाँ, आपका व्यक्तित्व तो बनता है, नई चीजें सीखते हैं, है ना। तो ये एक बहुत सुंदर कंपनी है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल मैं टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक एक्सटर्नल काउंसलर की जैसे भी मैं काम करता हूँ और इस ऑनलाइन में कहीं कहीं कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं जाता हूँ। ये भी एक बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये भी इस एरिया में जैसे लुपिन है, सन फार्मा है, यहाँ पर काफी बच्चों को दूर दराज महाराष्ट्र के रूरल एरिया से लेके आके उनको यहाँ पर ग्रेजुएशन कराया जाता है। उसके बाद उनको एक अच्छा जॉब भी मिल जाता है। तो देखिए ये एक लर्न एंड अर्न स्कीम के द्वारा काफी सोशल चीजें भी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम करती है, सहयोग देती है। जैसे CRS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और मैं एक प्रोडक्टिविटी क्वालिटी एफिशिएंसी कोच भी हूं और इस प्रकार मेरा जीवन बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। गुड। तो यह था एक छोटा सा परिचय। अब आता है मेरा आज का सेशन पे, सीधे हम चलते हैं। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि जीवन में हम सब खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बाल बच्चे खुश रहें। एवरी पर्सन उसका एक बेसिक नीड है, भले ही आप कुछ भी रहो, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, बाल बच्चे खुश रहें। ये हमारी एक चाहत रहती है जीवन की। आप जीवन के किसी भी दौर में हो, बट इनिशियली ये सब लगता है, बट अल्टीमेट आखिरी में जाके लगता है कि नहीं, फैमिली, माता पिता, बाल बच्चे और अल्टीमेटली प्रसन्नता, खुशी, जॉय। आप खुद देखिए ना, इस पूरे कोविड के सिचुएशन में बाकी सब भूल गए लोग। हाँ, वो खुशी, वो परिवार, वो हेल्थ, सब चीज याद आ गया। और कई लोगों को इसने याद दिला दिया, भले ही आप कितनी भी भाग दौड़ कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपकी यही खुशी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर इस खुशी को हम कायम कैसे रखें, बनाए कैसे रखें, ये भी एक बड़ा चैलेंज है और हम आप आपस में मिलकर इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई बार मैंने देखा है पेरेंटिंग को लेकर कई माता पिता काफी बेचैन रहते हैं। बातचीत के दौरान बोलते हैं, सर मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरे बच्चे के साथ बनती नहीं है, मैं काफी टेंशन में हूं। और कभी कभी बोलते हैं कि मेरा सुनता नहीं है, उद्दंड हो गया है ना, बिगड़ गया है। ऐसी कुछ चीजें जो हैं कभी कभी वो शेयर करते हैं। मुझे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैंने एक चीज ये सीखा, हम जीवन में बहुत सी चीजें सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं। बाद में हम पेरेंटिंग भी, मेरे हिसाब से ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है और इसको भी सीखा जा सकता है। नॉर्मली होता क्या है, पेरेंट हम तो बन जाते हैं, शादी हो जाती है, हम पेरेंट बन जाते हैं और बाय डिफॉल्ट नहीं, इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। देखिए जीवन में दो चीजें हैं, एक डिफॉल्ट जोन और एक डिजाइन जोन। अब जैसे जैसे डिजाइन जोन में आते जाएंगे, आपकी कोई भी चीज हो, लाइफ हो, उसमें आपको मजा आने लगेगा। हम जितना डिफॉल्ट जोन में रहते हैं, हम कश्मकश में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उदास रहते हैं। क्यों? कई पेरेंट, मैंने देखा है कई घर जो है, दो घर रहते हैं, घर बहुत ही मस्ती भरा रहता है
उसमें पेरेंट्स खुश, बच्चे खुश, फैमिली खुश, पूरा घर जो है बिल्कुल बहुत मस्ती में रहता है, हमेशा जॉयफुल मूड में रहता है, एंथुजियास्टिक रहते हैं हर हर व्यक्ति। उस घर में ऐसा लगता है खुशियों की पूरी बरसात हो रही है और पूरा घर खुशहाल रहता है। और उसी दौरान कोई घर जो है उदास, सन्नाटा छाया रहता है, लोगों में आपस में बातचीत नहीं होती, एक दूसरे की ओर मुंह फेर कर रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? लगता है कहीं ना कहीं इसको शायद हमको सीखने की आवश्यकता है। हाँ, और ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। सबसे पहले सीखने की बात तो ये है, पेरेंटिंग बच्चे के बिहेवियर को लेके नहीं है, इट इज पेरेंट्स के बिहेवियर को लेकर है। ग्रेट पेरेंटिंग इज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर, द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। सबसे पहले तो आप यहां पर आ जाइए। अभी आप हम लोगों को लेकर सोचते होंगे, बच्चे को लेकर चिंतित रहते हैं, नहीं वो तो अच्छी बात है, बट उसको सबसे पहले अपना बिहेवियर देखना। हम एक रोल मॉडल है उनके सामने। तो ग्रेट पेरेंटिंग इज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर, हाँ, द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। और यदि हम इसको पहले एक्सेप्ट कर लें, जीवन का रास्ता जो है काफी आसान हो जाएगा। और कभी कभी हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारी सबसे पहली गलती है। और ये भी मैंने भी सीखा है, हाँ ये मैंने भी सीखा है। हम भी सोचते थे कि हाँ हम तो पेरेंट बन गए, जैसे भी हो वी आर राइट, पेरेंट, फादर, मदर ऑलवेज राइट। बट कभी कभी आज मुझे, मेरे भी दो बड़े बड़े बच्चे हैं, एक न्यूयॉर्क में रहता है, वो भी शादीशुदा है, जॉब में है। मेरी डॉटर नागपुर में है, वो भी शादीशुदा है, बच्चे। बट आज मुझे लगता है कि जीवन में मैंने भी कहीं ना कहीं गलतियां करी है। मैंने भी उन मुश्किलों को शायद ये समझ के देखा है कि मैं ही राइट हूं। नहीं, आज मुझे पता लगता है शायद मैं भी गलत था, मुझे भी वहां पर ऐसा करना चाहिए था। सो पेरेंट्स चाइल्ड के बिहेवियर के पहले सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। यस, हम हमेशा, हमारी सारी जिंदगी दूसरों को जांचने में जाती है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्या हम कभी खुद देखा है कि मैं कैसा हूं? दोस्तों, आज मेरा पहला होमवर्क है आपके लिए। इस साल, इस जाते हुए साल में और आने वाले साल में सबसे पहले अपना खुद का एक स्वॉट एनालिसिस करिए। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है। और यदि थोड़ी बहुत जांच की आवश्यकता है, उसमें सुधार करना है। सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, आई डोंट एक्सेप्ट। और जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुख आधे दूर हो जाते हैं, है ना। तो आज का जो पहला है, आई विल चेक माई सेल्फ हाउ आई एम। तो ये इसको बिल्कुल याद रखिए, इट्स अ पेरेंट्स बिहेवियर। पेरेंटिंग को लेकर एक बहुत बड़ी बेस ग्रास रूट लेवल जो है, ऐसा नहीं हो जाता कि पेरेंट्स सडनली बच्चे बिगड़ जाते हैं या सडनली बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, सब सडनली बच्चे खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं इसकी जड़ जो है बचपन से रहती है। देखिए, यदि हम सोच रहे हैं हमारा वृक्ष हरा भरा रहे, अच्छे फूल दे, अच्छे फल दे, अच्छे वृक्ष हमारा सुंदर रहे, लहलहाता रहे, ये हम सब की, हमारा परिवार खुशहाल रहे, बट ये ऐसे ही नहीं होता। उस वृक्ष की असली ताकत जो है इस रूट्स में है। जब तक हम इस रूट्स में अच्छे खाद, अच्छी रोशनी, अच्छा पानी, अच्छा ये सब नहीं देंगे, तो आप वृक्ष से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? सेम चीज इज विथ आवर ओन स्टार्टिंग पॉइंट्स, दैट इज हमारे संस्कार, हमारी परवरिश कैसी है। क्या हमारी परवरिश अच्छी थी, संस्कार अच्छे थे, द बचपन कैसा था? तो यहां पर हमको एक बार उस जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, हम जीवन में सब चाहते हैं कि खुशहाल रहें, बट वो खुशहाली इज आउटकम। यदि वो आउटकम के पहले आपका इनपुट क्या है, यदि आप आउटपुट की बहुत उम्मीद रख रहे हैं बट इनपुट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा?
तो आज हम कुछ ऐसे शेयर आपके साथ, ऐसे स्किल्स, ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि यदि हम इस पर मिलकर काम करें, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमें एक खुशहाल जिंदगी, खुशहाल परिवार, हंसता खेलता परिवार, हंसते खेलते बच्चे और एक अच्छा खुशहाल जीवन। तो रूट्स, हम चलते हैं सर, ये रूट्स क्या है थोड़ा बताइए। चलिए देखते हैं रूट्स क्या है। जब हम लोग एक आर्टिस्ट है ना, हम एक आर्टिस्ट हैं, या हमारे हम जैसे ही हमारी शादी हुई, माता पिता हम लोग मिले, और एक एक आर्टिस्ट की तरह हम जीवन को बनाने निकले हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार घड़ा बनाता है गीली मिट्टी के द्वारा, वैसे ही गीली मिट्टी जो रहती है उससे हमारा काम शुरू होता है, और हमारा जीवन यहीं से शुरू होता है। और वो जब मिट्टी गीली रहती है तभी हम उसको शेप दे सकते हैं। मगर वो गीली मिट्टी कब है? बचपन, प्यारा सा बचपन। और कहते हैं कि माता पिता के जो बच्चों के पहले जो 10 साल हैं, करीब करीब 10 years, अभी तो ऐसा नहीं है, और क्योंकि एजेस भी, जैसे विली सर बता रहे थे कि एज का भी बदल गया है, टीनेज कब हो रहे हैं, तो 10 साल तक ये जो गीली मिट्टी है ये उसके बाद कड़क होने लगती है, कड़ा हो जाता है, फिर उसको शेप देना मुश्किल हो जाता है। तो हमको शुरुआत में ही, जब तक वो गीली मिट्टी है, उस पर काफी काम करने की आवश्यकता है, उस पर काफी काम करने की आवश्यकता है। हम उसको शेप दे सकते हैं, अच्छा रूप रंग दे सकते हैं, है ना, जो लाइफ में हम सबको जीवन में आगे बढ़ाए। शेपिंग द न्यू फ्यूचर। तो एक पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 10 साल, 12 साल, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, आप कभी भी, जब नींद खुले तभी सवेरा, हाँ, इसमें कोई देर नहीं है। तो ये है पहला चीज, रूट्स पर काम करने की आवश्यकता। सर ये रूट्स क्या है, थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे? आइए चलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर पर्सनालिटी बनती कैसी है, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी का कैसे निर्माण होता है, और एक अच्छी पर्सनालिटी, खराब पर्सनालिटी में क्या फर्क है, अच्छी पर्सनालिटी पे हमको क्या क्या करना चाहिए। आइए आपको मैं थोड़े से टिप्स देता हूं, और इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी देखते हैं। उसको एग्जाम्पल के जरिए ऐसे देखते हैं, जीवन में हमको, देखिए, कभी कभी दो व्यक्ति मिलते हैं, एक हम यदि इसको बोलेंगे दुखी राम, और इसको बोल सकते हैं सुखी राम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। और ये जीवन के हर क्षेत्र में हमको कभी ना कभी मिलते ही हैं। कुछ लोग काफी उदास रहते हैं, कुछ लोग दिन भर हैप्पी रहते हैं, ये हर जगह मिलते हैं। ये काम पे मिलते हैं, वर्कर मिलते हैं, सुपरवाइजर मिलते हैं, ऑफिसर मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, गांव वाले मिलते हैं। कई लोग सुबह उठते साथ उनका चेहरा जो है बिल्कुल लाजवाब, मस्ती भरा, हंसमुख, और दिन भर के दिन के अंत तक। और कई उसी वातावरण में एक व्यक्ति बहुत उदास, निराश, निढाल, बातचीत को लेकर हर छोटी बात पे नाराज होना, गुस्सा होना। कभी कभी लगता है, आपका जवाब ये हो सकता है, सर इसको कुछ प्रॉब्लम होगा, हम अगर उसी उसी कंडीशंस में ये भी खुश रहता है। तो ये जो पर्सनालिटी का जो बनना है, ये भी एक कला है। हाँ, और वैसे भी पेरेंट्स हो सकते हैं। क्यों कई पेरेंट्स जो हैं हमेशा मस्ती भरे रहते हैं, और क्यों कई पेरेंट्स उदास रहते हैं? क्यों कई घर जो है बिल्कुल लगातार खुशहाल, चहचहाते हुए, है ना, रंग बिरंगी मस्ती भरे रहते हैं, दिन गुजारते हैं, और कई घर जो है निढाल, सुनसान, सन्नाटा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो सीखने की आवश्यकता है, और साइकोलॉजिकली भी वो प्रूव हो चुका है कि पर्सनालिटी जो बनती है वो 3 E फैक्टर से बनती है। एक है एनवायरमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत जल्दी, और मैं सोचता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत गौर से सुनिए, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एग्जाम्पल फिर से इसी को मैं वापस लाता हूं। सपोज एक घर है जिसको हमने नाम दिया है, यह है रामू का घर और यह है राजू का घर। ठीक है, यह है रामू का घर और यह है राजू का घर। कल्पना करिए, रामू जो है
रामू का जन्म होता है, एक परिवार रहता है ना। हम रामू की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड उदास। रामू का जन्म हुआ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, धीरे धीरे रामू चलने लगा। हाँ, धीरे धीरे रामू चलने लगा, थोड़ा आजू बाजू देखने लगा, बड़ा होने लगा। वो देखता है कि उसका घर जो है काफी टेंशन भरा रहता है। वो देखता है आजू बाजू उसके घर में काफी चिल्लाते हैं लोग, जोर से बातचीत करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और राजू जो है देखता रहता है, ओ ओके ओके। उसके घर में कोई ऐसे सिगरेट पीता है, कोई धुआं उड़ता रहता है। राजू जो है बचपन से देख रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। और वो उसके जीवन में एक चीज ये समझ में आती, ओ लाइफ इज लाइक दैट, अच्छा शायद लाइफ ऐसा ही है। और राजू जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और स्कूल जाने लगा। एक दिन क्या होता है, जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो राजू को एक बदमाश लड़का, बिल्लू जैसा लड़का, एक उसके पास आता है और बोलता है, कहानी को गौर से सुनिए, ए राजू, ये क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, स्कूल वूल में, चलो अपन जाएंगे पिक्चर, घूमने जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, चलो, ये स्कूल कुछ नहीं है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और राजू के दिमाग में ये बात आती है, यस, लाइफ इज लाइक दैट ओनली, कुछ मजा नहीं है, मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरा परिवार भी ऐसा ही है। और कहानी कहती है कि राजू जो है उस बिल्लू के साथ चला जाता है। यह है पार्ट 1 स्टोरी। अभी चलते हैं पार्ट 2 स्टोरी पे। यह है रामू। रामू का भी जन्म होता है एक घर में। और रामू का जन्म जैसे ही होता है, उसके घर वाले खुशहाल, बिल्कुल मस्ती भरे, है ना, सब लोग उसको गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। हाँ, और रामू को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अब धीरे धीरे चलने लगा है वो। और धीरे धीरे उसको बहुत मजा आता है उसके घर में। उसके घर वाले बहुत प्यार करते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। सुबह सुबह देखता है कि जैसे ही सुबह होती है, उसके दादा दादी जो है एक अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के सामने और ऐसे खड़े होते हैं। ये रामू को कुछ समझता नहीं है क्यों खड़े होना है, बट ये भी दादाजी के सामने बाजू में जाके खड़ा हो जाता है, जो भी है प्रेयर वगैरह। मगर उसको बड़ा अच्छा लगता है। दादाजी उसको रोज शाम को घुमाने लेके जाते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, उसके जो दादाजी हैं अपनी चप्पल जो है मंदिर के सामने उतारते हैं। रामू देखता है, अच्छा अच्छा, मुझे भी ये चप्पल उतारना चाहिए। उसको कोई बोलता नहीं चप्पल उतारो, बट वो देखता है कि दादाजी ने उतारा है, तो वो भी चप्पल उतार के अंदर जाता है। शाम को घर वापस आते हैं। दादाजी उसको सोने के पहले एक बढ़िया कहानियां सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद, वीर अभिमन्यु, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की कहानी सुनते सुनते रामू को लगता है, यस, आई विल ऑल्सो हेल्प माई मदर फादर, आई विल ऑल्सो हेल्प माई पेरेंट्स। वीर अभिमन्यु की कहानी सुनते ही उसके मन में ख्याल आता है, यस, आई एम ऑल्सो ब्रेव, आई एम ऑल्सो करेजियस। शिवाजी महाराज की कहानी सुनते ही उसको भी लगता है कि यस, आई एम ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट। इन कहानियों के साथ, इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में रामू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और एक दिन ये भी 9वीं स्टैंडर्ड में पहुंचता है। कहानी कहती है कि सेम बिल्लू इसके पास भी आता है और बोलता है, ए रामू, ये क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में यार, चल सिगरेट पियेंगे, मस्ती करेंगे, पिक्चर जाएंगे। रामू बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा दादाजी कहा है, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, और जिस काम के लिए जा रहे हैं हमको वो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दिल लगा के पढ़ना चाहिए। और तुम भी मत जाओ, तुम भी बैठो मेरे साथ, तुम भी बैठ को पढ़ो, इससे हमारा जीवन बनेगा। ऐसे हमारे दादाजी कहते हैं, टीचर्स कहते हैं। और कहानी कहती है कि रामू उसके साथ नहीं जाता। इस कहानी के 2 पात्र में मोस्ट, क्यों ऐसा, क्यों एक जो बच्चा है हमेशा उदास हो गया, आवारा हो गया, बिगड़ गया, और एक जो है उस डिसिप्लिन में रहता है।
पर्सनालिटी की जो फॉर्मेशन होती है, व्यक्तित्व की पहली सीढ़ी जो है, ये है एनवायरमेंट। हमारे आजू बाजू का संस्कार, परिवेश, बातचीत करने का तरीका, है ना, बिहेवियर करने का तरीका, ये सब एनवायरमेंट पे आधारित है। चेक करना है हम कैसे, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग, एनवायरमेंट इज आवर टॉकिंग, आवर कम्युनिकेशन, आवर बिहेवियर, एवरीथिंग एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट जो है पहली सीढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दूसरा आता है, दूसरा ई, ये मैंने आपको पहला ई बताया कि इसमें क्या क्या आता है, एक छोटे एग्जाम्पल के जरिए भी मैंने आपको बताया। इसको लेते हैं एक्सपीरियंस। अभी आता है एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम फिर से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज ये जो राजू है, ये धीरे धीरे स्कूल जा रहा है, ठीक है, और इसके शाम का समय है, शाम का समय है। कल्पना करिए ये जो है शायद जूनियर केजी सीनियर केजी में होगा या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा। शाम का समय है, खाना वाना खा लिए हैं, डिनर टाइम हो गया है, और ये होमवर्क कर रहा है। और होमवर्क करते करते इसके बाजू में उसके मम्मी पापा भी बैठे हैं, और ये ABCD सीख रहा है। और इसने A और B बहुत अच्छे से लिखा, और C जो है इसका ठीक नहीं आया, हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गई। और इसके तुरंत इसको देखते ही साथ उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और तुरंत इस लहजे में बोलते हैं, बेवकूफ, तू स्कूल जाता है, क्या सीख के आता है? ऐसा लिखते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सीखोगे। धीरे धीरे जो है वो सुन रहा है, सुन रहा है, और उसके मन में ये बातचीत बन रही है, उसके मन में ये बिलीफ सिस्टम बन रहा है, यस, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, दिस स्कूल इज वेरी हार्ड, दिस क्लास इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट स्टडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट गुड, माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी, ये भी स्कूल गया, ये भी जूनियर केजी सीनियर केजी में है, रात का सेम समय है, सेम स्टोरी, सेम सिचुएशन। इसने भी ABCD लिखा, A बहुत अच्छा लिखा, B अच्छा लिखा, और C भी बहुत खराब लिखा। और जैसे ही खराब लिखा, उसके माता पिता, अपने पिताजी जो हैं, अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, है ना। स्टोरी को सुनिए। जैसे ही उसने खराब लिखा, पिताजी ने मिसेस को पूछा, अरे भगवान, अरे देख रहे हो अपना रामू जो है कितना सुंदर A निकाला है, कितना सुंदर B भी निकाला है, और जहां तक C का सवाल है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे C भी सीख जाएगा, और एक दिन देखना अपना बेटा जो है बहुत बढ़िया पढ़ेगा और जीवन में एक अपना नाम रोशन करेगा। और ये जो बच्चा है सुन रहा है, उसके अंदर ये भावनाएं पैदा हो रही है, यस यस, आई एम गुड, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन लर्न, आई एम ऑल्सो गुड। और वहीं से सुंदर सोच का निर्माण होता है, और वो होता है एक्सपीरियंस। दोस्तों, जीवन में एज ए पेरेंट आप क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं? कि तुम ठीक नहीं हो, जीवन ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं हो, पढ़ाई ठीक नहीं है, तुम कभी नहीं सीख सकते। कि दूसरा एक्सपीरियंस, अरे वाह, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम जैसे भी हो, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट। जीवन में ये दो प्यारे शब्द मैं बता रहा हूं कि जीवन में पूरा चमत्कार कर देते हैं, सिर्फ पूरा चमत्कार। हमने क्या एक्सपीरियंस दिया? हमेशा अपने आप को चेक करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, बातों के द्वारा। जब बच्चों के साथ आप बातचीत करते हैं तो किस टाइप का एक्सपीरियंस दे रहे हैं? हाँ, ये चमत्कार कर देगा। यहां पर आपको गौर करना है, व्हाट इज माई 3 E's, मेरा रोल क्या है ये 3 E में। ये आपके ऊपर है, हाँ हमारे ऊपर है एज ए पेरेंट। जब तक ये 3 E अच्छे से नहीं रहेंगे, हमारी जो जड़ जो है बहुत कमजोर रहेगी। हाँ, हम सोच रहे हैं कि यदि ये हमारा वृक्ष बहुत अच्छा रहा, तो सबसे पहले आज से आप 3 E पर काम करना शुरू करना है हमको। हम इन जड़ों पर क्या डाल रहे हैं? हाँ, अच्छी वृक्षों का तो मालूम है हमको, हम सबको बचपन से ही सिखाया जाता है, हाँ, वृक्ष जो हैं बहुत अच्छे हरे रहते हैं, इनके जड़ों में खाद दिया जाता है, रोशनी रहती है, पानी देना पड़ता है।
बट क्या कभी हमने जो हमारे प्यारे से जो बच्चे हैं इन पे ये दिया है? खाद, पानी, रोशनी। हम एक ऑटोमेटिक जोन में चले जाते हैं, हाँ अब बच्चे पैदा हुए हैं तो अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप जीवन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमको उन जड़ों को मजबूत करना है, और ये है ईच इंडिविजुअल पेरेंट की जिम्मेदारी। दोनों की, पेरेंट मतलब माता पिता दोनों। तो 3E जो है एनवायरमेंट, और दूसरा ई जो है मैंने एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, इसमें इस उदासीन बच्चे में मैंने क्या दिया? मैंने ये एक्सपीरियंस दिया, बेटा तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ये स्कूल बहुत कठिन है, जीवन कठिन है, और तुम भी बेकार हो। जाने अनजाने, कभी कभी हम हर वो चीज करते हैं जाने अनजाने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हमने खुद नहीं सीखा ना, हमने खुद नहीं सीखा, तो हम कैसे दे सकते हैं? वॉट आई नो देन ओनली आई कैन शेयर। और आज मुझे भी पता लग रहा है कि यस, दिस इज ए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये ऐसे पेरेंट हमको सीखना है। यहां पर मैंने क्या दिया? रिवर्स एक्सपीरियंस, तुम ठीक नहीं हो, तुम बेकार हो। और ये आदमी जो क्या है, कैसे अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं। और यहां मैंने क्या एक्सपीरियंस दिया? बेटा चिंता मत करो, जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुमने कितना सुंदर जीवन ए निकाला है, बी निकाला है, और जहां तक सी का सवाल है वो भी तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं हूं ना, डोंट वरी, यू आर वंडरफुल। यहां मैंने क्या दिया? यू आर वंडरफुल, यू आर करेजियस, यू आर ग्रेट। और ये छोटा सा जो डिफरेंस है, यही पूरे जीवन में एक खुशहाली और एक उदासी, यही अंतर है। सो एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस। अब सवाल आता है, सर सपोज एनवायरमेंट भी ठीक नहीं था, और सपोज गलती से हमने एक्सपीरियंस भी नहीं दिया, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द एजुकेशनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी कुछ खास नहीं था एनवायरमेंट। एक्सपीरियंस भी उनका, एक गांव में पैदा हुए, पिता नाविक थे, नाव चलाते थे, गरीबी में जीवन जिया। बट एक सुंदर एजुकेशन, सुंदर उनके टीचर ने जिस प्रकार से उनको प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। जीवन में दोस्त, दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एक है माता पिता और दूसरे हैं टीचर्स। और वाकई यहाँ पे जितने भी टीचर्स होंगे, आई रियली उनको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। दे आर रियली चेंज मेकर्स। यस। और ये एजुकेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके उनका भी गांव था, बहुत ज्यादा वो नहीं था, बट धीरे धीरे उन्होंने उस गांव से, उस गांव में स्कूल भी नहीं था, पड़ोसी स्कूल में गए, वहां भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। फिर उन्होंने, उनका जो स्टोरी आप पढ़िए, है ना, विंग्स ऑन फायर, रियली वंडरफुल बुक, पूरा मोटिवेशनल फुल। जीवन में कभी अपने आप को कम नहीं समझना है। आप जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं, जहां भी है वहां से शुरू कर सकते हैं। आज आपकी कोई भी स्थिति हो, बट यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल। सो एजुकेशन, फिर उन्होंने धीरे धीरे डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। एक बार वहां पर बोले चलो ठीक है, नौकरी के लिए उन्होंने पायलट बनने के लिए अप्लाई किया, और पायलट बनने में देखा कि उनको एक रिटन टेस्ट में पास हो गया, उनको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया गया। और एक बार जब उनका इंटरव्यू हुआ था, तो शायद 9 की जगह खाली थी, इनका नंबर लगा 10वां। ये बहुत उदास हो गए, और नदी किनारे जब ये बैठे थे, सोच रहे थे और काफी उदास थे, तो पीछे से स्वामी शिवानंद आए और देखे कि ये लड़का क्यों ऐसा उदास बैठा है। उन्होंने बोला, बेटा क्या हुआ? उन्होंने बोला, सर मैं क्या करूं, मैं इतना मेहनत किया, मैं गांव से आया हूं, मेरे माता पिता को मुझसे काफी उम्मीदें थी, मैं ये नौकरी नहीं मिली। स्वामी शिवानंद ने बोले कि देखो बेटा, तुम सोच रहे हो चलो ठीक है, तुमने पायलट के लिए एग्जाम में फेल हो गए, बट क्या पायलट अकेला एरोप्लेन चला सकता है? बोले नहीं। उसको कौन मदद करता है? बोले ग्राउंड वाले इंजीनियर्स। तो बोले व्हाई डोंट यू ट्राई दैट। तुरंत वो एचएएल में आए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वहां पर उनको एक नौकरी मिली। धीरे धीरे वो इंजीनियर से आगे गए, धीरे धीरे उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम किया,
और धीरे धीरे अपने राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। सी द पावर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, और भारत रत्न से सम्मानित हुए। व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी। दोस्तों, जीवन में ऐसा नहीं है कि आप गांव के, कई लोगों को मैंने सुनते देखा है, अरे मैं तो गांव का हूं, मुझे ये नहीं आता, मेरे गांव में तो स्कूल नहीं था, मेरे को अच्छा स्कूल नहीं मिला, मेरे को अच्छे टीचर नहीं मिले, मेरे को अच्छा माहौल नहीं मिला। देखिए, यहां भी कुछ नहीं था। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, है ना। तो ये जो परिवर्तन है, पेरेंटिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको ये तीनों पे लगातार एक कड़ी नजर बनाए रखनी है। सर, एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल में है वहां से शुरू करो। हमको पूरी दुनिया का, हमने कुछ नहीं लेके रखा है कि एनवायरनमेंट सुधारना है, बट आप जहां पर हैं वहां से तो शुरू कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट सिर्फ चीजों का नहीं है, ये आपकी बातों का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके बिहेवियर का है, आपके लहजे का है। हाँ, क्यों कोई, कई बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, वो एनवायरनमेंट, वो गरीब घर को नहीं छोड़ते, वो घर वाले के लहजों को छोड़ के भागते हैं। हाँ, दैट इज योर कम्युनिकेशन, दैट इज योर बिहेवियर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। So that is a very, very important role, how something can be a happy or why something are sad. क्यों कई लोग जीवन में दुखी राम रहते हैं और क्यों कई लोग जीवन में खुशहाल रहते हैं, सुखी राम रहते हैं। तो ये था एक छोटा सा 3E प्रिंसिपल। अभी चलते हैं, तो सर आगे और कुछ है? यस। सबसे पहले एज ए पेरेंट हमको ये अंडरस्टैंड करना है, every human being is born into life with a unique temperament and begins distinct personality. हर बच्चे का एक यूनिक टेम्परामेंट रहता है, उसकी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी रहती है। उसको आपको एक्सेप्ट करना है, वहां पे लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। हाँ, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, नेवर कंपेयर दैट। कई घर में सिर्फ दो भाई बहन में भी डिफरेंट रहते हैं, दो भाई लोग डिफरेंट रहते हैं, ये एक डिस्टिंक्ट कुदरती देन है। हाँ, और उसी को लेकर हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट सिंपली टू पे ऑन गोइंग अटेंशन टू चाइल्ड। एक एक्ट और रिएक्ट कैसे करना है, हाँ, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट सीखना है। इट इज टू एक्ट और रिएक्ट इन ए स्पेसिफिक वेज। दिस इज अ स्किल, दिस इज a parenting skills. Always remember that a child is paying specifically close attention to you. हाँ, आप कितनी भी बातें बोलो, कितने भी लेक्चर दो, मगर बच्चे की नजर में आप खुद एक रोल मॉडल हैं। यदि आप बाहर से आते हैं और अपने कपड़े इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, बच्चा देख रहा है, वो भी वैसे ही करेगा। हाँ, यदि हम चप्पल इधर उधर रखते हैं, वो भी वैसे ही करेगा। हर चीज, आप ऊंची टोन में बात करते हैं, वो भी वहीं से सीखता है। हाँ, जोर से बातचीत करना है। आप हमेशा एक दबाव के मोड में रहते हैं, वो भी वहीं से सीख रहा है कि यस, मुझे भी ऐसे ही। वी आर ए रोल मॉडल्स। और घर, नॉट ओनली पेरेंट्स, घर में जितने भी हैं, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो। तो यहां पर एज ए पेरेंट हमको कुछ खास चीजों को गहराई से समझने की आवश्यकता है, गहराई से समझने की आवश्यकता है। 3E प्रिंसिपल, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। बी केयरफुल, बी केयरफुल। यू आर अंडर वॉच, यू आर अंडर वॉच। हमको कोई ना कोई देख रहा है ना। और हम जो बोलते हैं ना, वो वीडियो कैमरे वाला, जो शादी में वीडियो वाला, ऐसी नजर सबके सामने, हम भी उस राडार में हैं, उस वीडियो में हैं, बच्चे की नजर में। एवरी, दे आर वेरी वेरी, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है बहुत तगड़ी रहती है बचपन से ही। हाँ, ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं। और ये हर माता पिता को स्टार्टिंग से ही, जब गीली मिट्टी रहते हैं, तब से ये काम शुरू होता है। सडनली आप 12वीं में 11वीं में नहीं कर सकते। हाँ, कई बच्चे 12वीं में जो बच्चे रहते हैं,
अब उनको लगता है कि ये तो कुछ तो गलत हुआ है, और तब आकर वो काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास। सर ये सडनली सडनली नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे वो मिस्टेक हुई है, हमसे वो गैप रह गया है जहां पर हमने अटेंशन नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पाए, वो प्यारा सा क्वालिटी टाइम निकल गया। हाँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटी टाइम, वो बचपन जहां पर हम शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं। बचपन का जो एनवायरनमेंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सर ये कैसे अफेक्ट करता है, क्या वो बचपन इतना इंपॉर्टेंट है? आइए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूं पेरेंटिंग में, पर्सनालिटी में छोटी छोटी चीजें कैसे मदद करती है या कैसे इंपैक्ट करती है। स्टार्टिंग में हमको नहीं मालूम कि वो मोबाइल है या उसके बात करने की चीज है। उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सीखा होगा, कहीं ने उसकी आवाज देखिए, उसकी टोनैलिटी कैसी चेंज होती है, जोर से फिर धीरे। कोई ना कोई ऐसे बात करता रहा होगा जो लगातार ऑब्जर्व करता है ये बच्चा, और वहीं से शुरुआत होती है कहानी की। कहां से, कैसे, क्यों? बिकॉज वी आर अंडर राडार कैमरा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो बिहेवियर है, हम उसके सामने कैसे बर्ताव करते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि कैसे कभी कभी मोबाइल एडिक्शन, हालांकि अभी तो मोबाइल एडिक्शन भी यहाँ से स्टार्टिंग होती है। हाँ, और कई माता पिता को मैंने देखा हूँ कि लगातार बचपन से ही कुछ हाथ में दे देते हैं कि कभी कभी उनको भी परेशानी होती है, तो वो भी सोचते हैं कि चलो इसके द्वारा, बट वो लत ना बन जाए, वो आदत ना बन जाए, इसका हमें काफी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी यही उसमें जो मोबाइल से में काफी गेम रहते हैं, कभी इतना अट्रैक्टिव रहता है कि ये बच्चों को अट्रैक्ट कर लेता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है कभी कभी, और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये था एक डिफरेंट एनवायरनमेंट जो मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए बताया। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। तो यहां पर मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाया है ना, आप इसको रामू राजू का भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप जैसे सिखाएंगे, आप जैसी शुरुआत करेंगे, आप जैसे जड़ में हवा, रोशनी, पानी देंगे। हाँ, उन लोग तो गीली मिट्टी हैं,
ये कुछ भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे रह सकते हैं या तो यहाँ पर रह सकते हैं। और कभी ना कभी हमको अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग में कभी डिले नहीं करना है। यहाँ बचपन की जो परवरिश है वहीं से शुरू हो जाती है। और कैसे जो है पर्सनालिटी बनती है, इसके मैंने 3E एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करी। आप जो करेंगे वो सीख जाएंगे। हाँ, हमने यहाँ पर उनकी ये आदत बनाई, बेटा यस तुमको भी काम करना है, तुम भी ये कर सकते हो, तुम भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, तुम भी मुझे मदद कर सकते हो, यस आओ मेरी मदद करो। यहाँ पर ये बच्चा बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। और यहाँ पर जो है ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको अपने को एज ए पेरेंट अपने को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है और सुधार करने की आवश्यकता है। EEE, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। कभी कभी कई पेरेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा आजकल झूठ बोलने लगा है। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, आजकल ये सडनली झूठ बोलता है, कहीं भी जाता है कैसा तो भी रहता है और आके झूठ बोलता है। गौर से सुनिए, if your child is lying, it means you overreacted to the mistakes in the past. हमने कहीं ना कहीं छुटपन में या दही से उसकी मिस्टेक्स पर ओवर रिएक्ट किया है, ऐसा नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बेटा, मेरा बेटा 2nd स्टैंडर्ड में, ठीक है, और रोज स्कूल जाता है, स्कूल से 12 बजे आता है और जैसे ही घर पर आता है वो सीधे किचन में जाता है मम्मी के पास, है ना। मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी भी बहुत खुश होती है, अरे वाह बेटा आ गया, तू स्कूल से आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ मेरा राजा बेटा बढ़िया। और ये जो है बेटा जो है, मम्मी आज स्कूल में ऐसा हुआ, मेरे को वो दोस्त से खेला, ये खेला वो खेला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मम्मी भी वाह वाह वेरी नाइस, बहुत खुश, बहुत बढ़िया बेटा, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट। धीरे धीरे ये बच्चा जो है 3री, 4थी, 5वीं में ऐसे ही स्कूल से आता है और मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, दोनों मिलके खाना खाते हैं, आप दूसरे से शेयर करते हैं। सडनली एक दिन क्या होता है, ये बच्चा जो है 9वीं स्टैंडर्ड में पहुंचता है और 9वीं से घर पर आता है सेम 12 बजे। और जैसे ही किचन में जाता है, मम्मी 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 मैंने आज सिगरेट पिया। मम्मी जो है उसका चेहरा देखने लायक रहता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चेहरे पर पूरी क्रूरता आ जाती है और शायद एक चटाक से झापड़ भी पड़ सकता है। बच्चा जो है सडनली सोचता है, यार कल तक तो मैं जैसे स्कूल से आता था और मैं शेयर करता था, मम्मी आज ऐसा किया, मम्मी आज वैसा किया, और आज ऐसा क्या हो गया कि दिस सिंपल थिंग व्हाट, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आई एम नॉट टेलिंग दैट सिगरेट स्मोकिंग इज गुड और बैड। क्या उस मम्मी के पास दूसरा चॉइस था क्या? थोड़ा सोचना है। यस, उसके पास दूसरा चॉइस था। इस ओवर रिएक्टेड के बदले मैं शायद ये बोल सकती थी कि बेटा ओ वो तो तुम्हारे जैसा नहीं है, दैट इज नॉट लाइक माई सन, देखो उससे तो काफी चीजें खराब होती है, उससे तो हेल्थ बिगड़ती है, उससे तो कैंसर होता है ना। मेरे ख्याल से तुम बहुत समझदार हो, आई डोंट थिंक यू विल डू इट अगेन। इमीडिएटली वो जो मिस्टेक्स है ना, उसको पता लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि वो गलत था, ये था उसके मन में ये सडन जो ओवर रिएक्शन हुआ। अभी क्या होगा मालूम, सपोज उसने चाटा खाया, तुरंत उसके मन में एक चीज बैठेगी, ओ अच्छा अच्छा, कुछ चीजें जो है मुझे मम्मी को बताना चाहिए और कुछ चीजें जो है मम्मी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और वहां से शुरू होता है झूठ का जन्म। यस, सो यदि हमारी कोई भी चीज जो है यहाँ पर उसके डीप रूटेड चीजें हैं, ऐसा नहीं कि वो सडनली झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी ओवर रिएक्शन। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ओवर रिएक्शन है, शायद हमको भी सीखने की आवश्यकता है। क्या वहां पर मेरे पास दूसरा चॉइस था क्या? दैट इज हाउ वी कैन करेक्ट। तो कभी कभी बच्चों के पीछे जो झूठ बोलने की है, कहीं ना कहीं शायद माता पिता या घर वाले भी,
हाँ, तो ओवर रिएक्ट किए होंगे, तो बच्चे को एक चीज समझ में आ गई, कुछ भी बाहर करो, यहां आके झूठ बोल दो, खत्म, रास्ता क्लियर. सो दैट इज वेयर वी हैव टू लर्न, वी ऑल एडल्ट्स हैव टू लर्न. आइए चलते हैं और आगे. सर आजकल मेरा बच्चा जो है बहुत ही रूडली बात करता है, उल्टा जवाब देता है. कई माता पिता शेयर करते हैं. इफ द चाइल्ड बिहेव्स रूडली, it is learned from the parents or others living with them. एक्चुअली उसको मालूम नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है, बट कहीं ना कहीं वो सीखता है. आवाज ऊंची करना, बॉडी लैंग्वेज पे क्रोध लाना, कहीं ना कहीं बचपन से वो देखता है और उस प्रकार से वो रूड, उसको मालूम नहीं कि ये रूड है, उसको तो वो एक एक्सप्रेशन है, उसके लिए वो एक्सप्रेशन है, उसके लिए वो एक्सप्रेशन है. तो यहां पर हमको भी ये समझने की आवश्यकता है कि कहां कहां पर हम वैसा कर रहे हैं, तो वो हमारी कॉपी करते हैं, हम उनको मालूम नहीं रहता. और कभी कभी वो इमोशंस वैसे बदलने लगते हैं, और वो उसको कॉपी करने के द्वारा हमको ऐसा लगता है कि वो बिहेव भी वैसे कर रहे हैं, उनका इमोशंस भी वैसा है. नहीं, शायद इमोशंस वैसे नहीं होंगे, बट वो कॉपी करते हैं. तो यहां पर भी हमको एक समझने की आवश्यकता है कि कहां पर हमको कैसे बिहेव करना है एज ए पेरेंट और मदर. तो सर कुछ खास एक फॉर्मूला बताइए कि आज हमसे इस तरीके से इस फॉर्मूला को अपनाएं तो शायद हमारा भी जो 3E प्रिंसिपल है सही होगा. तो चलिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला देता हूं. हम बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बेटा स्कूल में जाके क्या करते हो? तो बोलता है बच्चा ABCD, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fox, है ना, G for God. एज ए पेरेंट आइए चलिए मैं आपको सिखाता हूं नया ABCD. आपको सीखना है A फॉर एटीट्यूड. हमेशा दिन भर एक वातावरण बनाए रखिए होपफुल, हाँ, आशा का, है ना. हमेशा एक होपफुल लहजे में बात करना है. हाँ बेटा, यस आई थिंक इट विल बी डन, इट कैन बी डन, यस यस यू आर गुड. हमेशा प्रॉब्लम्स को लेकर अपने आप को हमेशा ऐसा चूज करिए कि आर यू ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और आर यू ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. कई लोग मैंने देखा है कि जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. क्या आपने कभी सोचा है कि देयर इज ए सॉल्यूशन ऑल्सो? बच्चा सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, और वो भी हर चीज को, और कभी कभी तो बड़ा चढ़ा कर, कभी कभी तो आदत भी रहती है कि बात का बतड़ंग बनाना. आप तो बतड़ंग बतड़ंग बना रहे हैं, बट उधर कोई सुन रहा है, छोटा बच्चा, और वहां से निर्माण होता है उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर. सो जीवन में एक चीज याद रखना है, कृपया नोटेशन ना करें बच्चे, स्क्रीन पर कुछ ना लिखें, थैंक यू. सो एक ए फॉर जो एटीट्यूड है, जो है वो बनाकर, एटीट्यूड बर्ताव, दृष्टिकोण, है ना, हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक, पॉजिटिव. क्योंकि आप जैसे ही दिन भर बातचीत करेंगे वैसे ही, क्योंकि कई इस कोविड सिचुएशन में भी, यस देखिए आप कितने सुंदर तरीके से पूरे कई लोग जो हैं, भले ही कितनी भी वर्स्ट परिस्थितियां से लोगों ने अपने आप को, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, उस माहौल से धीरे धीरे निकल रहे हैं, है ना. करेक्ट. ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीव. हमेशा बिलीव दैट यू आर वंडरफुल, है ना, आप भी वंडरफुल एंड यू आर ऑल्सो मेकिंग देम वंडरफुल, फीलिंग देम वंडरफुल. ट्रस्ट, सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है. यस तुम बहुत अच्छे हो, झूठा वो कोई वायदा नहीं है. यस तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, आई बिलीव इन यू. कभी कभी कई माता पिता हर बातचीत में तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करोगे, क्या तुम स्टेज पे जाओगे, तुम तो कचरा कर दोगे, तुम क्या ड्राइंग करते हो, उसको राजू को देखो, रामू को देखो. नो, नेवर कंपेयर. जैसा भी है वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है. बिलीव, बिलीव. हमारा एक छोटा सा वाक्य जो है हमारे लिए जो है एक छोटा सा नेगेटिव ये हो सकता है, बट उसके पूरे लाइफ को एक खराब कर सकता है.
बिलीव, उसका सेल्फ एस्टीम बनाना है। सी फॉर कैजुअल, अपने पेरेंटिंग में कभी कैजुअल मत रहिए कि हाँ हो जाएगा जैसे भी हो, इतना बड़ा हो गया है खुद भी कर लेगा। नहीं, आपका टाइम और आपका रिलेशनशिप उसके साथ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आपका क्वालिटी टाइम, आपकी प्यारों में ताजगी, आपकी रिलेशनशिप में ताजगी। क्यों कोई कई कई जो फैमिलीज हैं, कोई उदासी क्यों रहती है, और कई कई रिलेशनशिप ताजगी रहती है, मस्ती भरी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल अप्रोच उस पेरेंटिंग को लेकर नहीं। सीरियस रहिए, आपका बहुमूल्य टाइम दीजिए, समय दीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, कहानियां पढ़िए, कहानियां सीखिए, कहानी सुनिए, कहानी बताने को दीजिए, खेलिए। क्वालिटी टाइम ऐसा ही नहीं है, आप कितने इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व। सो वो था कैजुअल अप्रोच। डिसिप्लिन, क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? थोड़ा सोचिए, क्या आप बातचीत पे रूठ जाते हैं, बात बात पे, बातचीत पे गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे? मॉडरेट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा प्यार। किसान जब घड़ा बनाता है, वो गीली मिट्टी चाक पे अंदर से हाथ रखता है और बाहर से मारता है। प्यार भी और मस्ती भी, दोनों मिलकर वो घड़ा बनता है। डिसिप्लिन। बी एंथुसियास्टिक, बी सीट एंथुसियास्टिक बॉडी लैंग्वेज। जब भी आपके जैसे बच्चे छोटे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है उनके सामने? निराश, उदास, ढीले ढाले? नहीं, बी एंथुसियास्टिक, स्माइलिंग, जॉयफुल। अरे यार, आई लव यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऐसा नहीं कि वो वेरी डल, मुझे मालूम है हो सकता है हम थकान होंगे, ये होंगे, बट डोंट लेट इट पोर। वो बच्चों को नहीं मालूम कि आप कितने थके हुए आए हैं या जो भी आए हैं। गेट पे पहुंचते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही करिए, स्माइल करिए, हेलो बेटा, यस हाउ आर यू। इवन देन, इवन इफ इट इज ए नाटक हो सकता है ना, एक्ट एज इफ, है ना, एक्ट एज इफ। टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि एनएलपी लैंग्वेज में, इवन इफ यू आर डल, लेथार्जिक, एक्ट एज इफ यू आर एंथुजियास्टिक। क्यों सर, मुझे ऐसा क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बच्चे की नजर में वो आपको कॉपी करता है। यू आर स्टैंडिंग टॉल, यू आर स्माइलिंग, यू आर जॉयफुल, यू आर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप एक कॉन्फिडेंस का पुतले हो और उसको वैसे ही दिखता है, बनता है। सो एंथुजियास्टिक इज ए वंडरफुल। ए बी सी डी ई, फेथ इन देम, एफ फॉर फेथ, विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए। यस, जीवन लंबा है, जीवन में कठिनाइयां है, बट आपका फेथ, है ना। साईं बाबा के मंदिर में क्या लिखा है? श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा के साथ साथ सब्र, होप। वंडरफुल, कितने सुंदर दो शब्द हैं, बट बहुत प्यारे। ऑलवेज ट्रस्ट एंड होप। और जी फॉर गोल, टाइम टू टाइम गाइड करिए, अच्छी ग्रेट पर्सनालिटी के ऑटोबायोग्राफीज वगैरह उनके साथ शेयर करिए। बचपन से बच्चों को कहानियां बहुत अच्छी लगती है। हाँ, कोई भी एक किताब, और शुरू में आप पढ़िए। कई बच्चों को देखिए, ए गुड रीडर इज ए गुड लीडर एंड ए गुड लीडर इज ए गुड रीडर। हाँ, और आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा। हाँ, पढ़ना, स्टोरी शुरू से, स्टोरी से शुरू करिए। हाँ, और स्टोरी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और स्टोरीज सीधे बच्चों के मन पे जाती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वहां से डायरेक्ट बिहेवियर बनता है। हाँ, ये जो छोटी सी, जैसे आप शिवाजी की कहानी में सुनते हैं, उनकी मदर जो है जीजा माता, तू एक दिन महान योद्धा बनेगा, तू मेरा राजा बेटा है ना, तेरे जैसा दुनिया में तू अद्वितीय है, तू महान है। ये दो तीन वर्ड्स बचपन से सुनते सुनते सुनते, है ना, शिवाजी महाराज, इट्स अ सो पावर ऑफ द स्टोरीज। वैसे कोई भी कहानियां, भारत में क्यों इतनी सुंदर, जो भारत की संस्कृति है कहानियों के द्वारा, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, एक एक पात्र अलग अलग पर्सनालिटी को लेकर आए। हरिश्चंद्र, जैसे ही सुनते हैं कि अरे वाह, सत्य जैसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट हैज ए वैल्यू, ट्रूथफुल हैज ए वैल्यू। कई कई लोग बोलते हैं कि अरे सर, सत्य का क्या जमाना है, बट है, अभी भी है।
So like that, every stories has a power, and as a parent, as a child, both are interconnected. Stories को बहुत यूज करिए, किताबों को बहुत यूज करिए. क्यों? कि सेल्फ एस्टीम इज की फॉर कॉन्फिडेंस. If your child has a poor self-esteem, it is because you advise them more than you encourage them. हाँ, आपको एडवाइस बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको एनकरेज करना है. बहुत कई बच्चों को, माता पिता को मैंने देखा है, जिसको कभी कभी हेलीकॉप्टर पेरेंट भी बोलते हैं, हमेशा उनके ऊपर एक छाया जैसे मंडराते रहते हैं. उतनी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत करना है, और उसके बाद आप बहुत ज्यादा एडवाइस करेंगे तो उनका सेल्फ एस्टीम जो है बहुत कम हो जाएगा. और क्योंकि आप बार बार एडवाइस देते रहते हैं, फिर वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे. और जबकि हम एज ए पेरेंट हम सब चाहते हैं, कई बच्चे पेरेंट भी पूछते हैं, सर मेरा बच्चा हर चीज के लिए मेरे पास पूछता रहता है, मैं क्या करूं, ये कुछ डिसीजन ही नहीं लेता. क्यों क्यों लेगा? क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं एडवाइस ज्यादा दिए होंगे इंस्टेड ऑफ एनकरेजमेंट. So too much advice also sometimes spoils, because otherwise they will not be able to take a good decisions. अच्छे डिसीजंस कहाँ से आते हैं? गलत डिसीजन लेने के बाद अच्छे डिसीजन आते हैं. और कभी कभी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी लेने दीजिए. और कभी एज ए पेरेंट, सपोज आप कुछ बातचीत कर रहे हैं घरों में, है ना, कभी कभी मिलकर हम कुछ डिसीजन लेते हैं, इन्वॉल्व देम ऑल्सो. हाँ, आपको मेरी गलती भी मैं बताता हूँ. एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा जो शशांक है, वो 11वीं में था, और एक मोबाइल शायद उस समय उसको लेना था. और मैंने सोचा कि आई एम ए गुड डिसीजन मेकर, मैं एक बाजार से एक मोबाइल लेके आ गया. और सुनिए, आने के बाद मेरे बेटे ने एक चीज बोला, पापा क्या आप मेरे को नहीं लेके जा सकते थे उधर? ये चीज आज भी मुझे याद है. And I really feel bad. Why I have not taken him? You see, even a small decision, we should involve the children. है ना? ऐसा नहीं कि उनसे वो पूछ रहा है, but उनकी जो including है, उनका inclusion बहुत important है. They will also feel, yes, I am a part of that. I am a part of this family. So this is, वो depend करता है ना? In what extreme? कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द टाइम, है ना. हाँ, इसको आप रूल जैसे मत लीजिए, डिपेंड करता है. यदि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हैं, तो शायद हम अपना ही ट्रम्पेट बजाते रहते हैं. कई माता पिता बोलते, सर हमारा बच्चा कुछ चीज बताता नहीं है. शायद आप उसको बताने का मौका नहीं देते, तो फिर वो सीक्रेटिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम है, एग्जाम से बच्चा आया, और जैसे ही घर में घुसा, कैसा था एग्जाम, क्या हुआ, कितना लिखा, कैसा लिखा, कितने मिलेंगे? अरे भाई, अभी वो घुस रहा है, घर के अंदर आने दो, थोड़ा सा पानी वानी दे दो. बट सर क्या ये पूछना गलत है? नहीं, बट वो टाइम गलत है. लेट हिम कम, लेट हिम गो इनसाइड. यू डोंट नो कैसा था पेपर, क्या था, उसका इमोशंस कैसे थे, या खराब था, अच्छा था, वो बताएगा. हम जितनी तेजी से प्रोबिंग शुरू कर देते हैं, वो बोलता है हाँ ठीक था, ओके, एक में खत्म, मतलब आगे मत पूछो मुझसे, ओके, गुड. व्हाई आवर कम्युनिकेशन हैज स्टॉप्ड? और बाद में फिर 2 ही 3 वर्ड्स बोलते हैं. कई टीनेजर्स वगैरह मैं देखा हूं, कैसा था, ओके, गया था, हाँ, नहीं गया था, हाँ. Somewhere we have stopped that communication, we have not encouraged, we have not involved. So somewhere हमको सीखने की आवश्यकता है. Don't blow your own trumpet too much. धीरे धीरे धीरे, let it open. कई बच्चे मैं देखा हूं हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, सर मेरी आजकल घर जाने की इच्छा नहीं होती. क्यों? घर काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है. क्यों? क्यों कई बच्चे घर जाना चाहते हैं?
वहां पर कोई इंतजार कर रहा है, यहाँ पर लेक्चर की बम्बार्डिंग होगी। टू मच, डोंट गिव टू मच लेक्चर्स, इट विल नॉट वर्क। लेक्चर्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आपको लगता है वो सुनेंगे? नहीं। बट सर ये तो प्रॉब्लम है ना। हाँ प्रॉब्लम है, बट सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज। उनका मूड देखिए, उनको बातचीत करने का थोड़ा सा देखिए, क्या सही समय है। कोई भी समय में आप प्रोबिंग शुरू करेंगे, ही विल नॉट जस्ट ओपन, ही विल क्लोज। So it's very important to understand the psychology, their emotions, what is the right time to start the communication. शुरू में हो सकता है थोड़ा सा ये एक आदत हो सकती है, बट साइकोलॉजिकली यही सही है। इमोशंस, इमोशंस को समझना, उसके इमोशंस बताने की इच्छा है या नहीं है, क्या वो टाइम सही है, आपका लहजा, कम्युनिकेशन कैसा है, छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल रामू राजू का, सपोज रामू ने आया और नहा के आया और गीला तौलिया सोफे पे डाल दिया। पहला कम्युनिकेशन, गधा कहीं का, यहां रखते हैं क्या टॉवेल, बेवकूफ, मालूम नहीं कहां पे रखा है गीला तौलिया, तू कुछ नहीं सीख सकता। खत्म। दूसरा सेम सिचुएशन, अरे बेटा रामू तूने यहाँ पे सोफा पे रख दिया, अरे अभी गेस्ट आने वाले हैं भाई, वो देख के अपने को बोलेंगे नहीं कि अरे वाह कितना बढ़िया घर है, और देखो अपना घर को देख के उनके मन में क्या रहेगा, है कि नहीं? अपने को घर अच्छा होना चाहिए ना। हाँ बेटा। नेवर क्रिटिसाइज द पर्सन, क्रिटिसाइज द एक्ट। पहले इसमें मैंने रामू तुम ठीक नहीं हो, रामू तुम खराब हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ हो, नो। दूसरे में मैंने क्या बोला, रामू तुम ये जो तौलिया रख रहे हो ना, ये गलत है, मैं इस वजह से नाराज हूं, तुमसे नाराज नहीं हूं। पहले केस में मैं तुमसे नाराज हूं, तुम कुछ नहीं हो तुम। दूसरे में तुम्हारा ये जो तौलिया यहां रखना है ना, ये पसंद नहीं है। यू सी द थिंग्स आर सेम। सपोज बच्चे जो है जाते जाते दरवाजा भाड़ से बंद कर देते हैं, पहले केस में ए रामू जोर से मत बंद कर। दूसरे इसमें रामू तू जा रहा है ना बाहर, दरवाजा बेटा धीरे से बंद करना। द मोर यू फोकस, जोर से मत बंद करना, वही करेगा वो जाते जाते। और इधर मैंने बेटा तू बहुत बढ़िया है, जाते जाते धीरे से बंद करना, हाँ धीरे। द सबकॉन्शियस माइंड हियर इट हैज गवन जोर से, एंड हियर इट हैज गॉन बेटा धीरे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। एकदम से मत करना, धीरे धीरे करना, अपने आप को समझना। दीज आर ऑल स्किल्स। अनफॉर्चुनेटली हमको ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बट छोटी छोटी चीजें कभी कभी हम नहीं सीख पाते। आइए देखते हैं एज ए पेरेंट एक छोटा सा वीडियो। ओके शायद
तो ये था कि एक्चुअली मैं समझा देता हूँ कि शायद मेरे ऑडियो या इसमें कुछ खराबी होगी। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। पापा देखो हम शादी कर रहे हैं। अरे बाबा तुम्हारी शादी हो जाएगी, अभी आदित्य अंदर जाकर खेलो। नो नो अभी। You like me? Yes, you like me? हाँ हाँ। और शादी के बाद क्या करोगे? मैं पापा जैसे सुबह उठूंगा और रेडी होऊंगा। और फिर? मन्ना मुझे बैग देगी और मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस में बहुत सारा पेपर साइन करूंगा और बहुत पैसा मिलेगा। So cute man. एंड देन? फिर मैं घर आऊंगा। अच्छा और फिर मानिया क्या करेगी? बहुत कुछ। और घर आके तुम क्या करोगे? फिर मैं उसे मारूंगा। फिर मैं आराम से दरवाजा बंद करूंगा और सो जाऊंगा। नो नो, सोने से पहले मैं खाना लाऊंगी और आप शो करके प्लेट फेंक देंगे। ओके। These kids grow up believing it's okay to violate women. Look within. Women's safety begins at home. की बात कर रही हो? ये मेरा आदित्य। कल मुझे क्या तो ये था एक यू सी, जब हम बचपन से ही ये देखते हैं, है ना, हमारा बिहेवियर और हमारी हर चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। कल मुझे तो अभी सवाल आता है कि सर ये पेरेंटिंग कोर्स जो है क्या है, कैसे है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं, क्यों हमको करना है। योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन शुड बी सीन इन योर बिहेवियर। कभी कभी हम कितनी अच्छी शिक्षा भी, बड़ी बड़ी शिक्षा देते हैं, बट हमारा जो बिहेवियर है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कोविड सिचुएशन ने हमको ये भी सिखाया है कि कैसे हमको उसको अच्छे से करना है, कर पाना है। व्यवहार क्यों इंपॉर्टेंट है ना, काइंड, जेंटल, लविंग। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। तो हमको हमारे बच्चों को एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार नागरिक, है ना, ये सब हमारी ही वो देन है, हमारे ही रेप्लिकेट है। हाँ। और
अपने बच्चों को जरूर सब चीजें सिखाइए, है ना। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार हर बच्चे में हर चीज है। इंजीनियर डॉक्टर अच्छी बात है, बट वो एक अच्छा कवि हो सकता है, कथाकार हो सकता है, एक अच्छा कैमरा हो सकता है ना, एक अच्छा डांसर हो सकता है, एक अच्छा लीडरशिप हो सकता है, म्यूजिक बजा सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, सेवाधारी हो सकते हैं, है ना, बायोलॉजी जूलॉजी के एक्सपर्ट हो सकते हैं। डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, हर बच्चा अनूठा है ना। उसको थोपिए मत, उसको थोड़ी उसके अंदर की प्रतिभा देखिए, उसकी प्रतिभा को संवारिए, सजाइए, उसको एनकरेजमेंट दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुल मिलाकर धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने अंतिम स्लाइड पे। पेरेंट्स भी जो हैं अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, अनइन्वॉल्व, परमिसिव, यहाँ पर जो है काफी दबाव में रहते हैं, है ना। दबाव में रखते हैं बच्चों को, प्रेशर अनुभव करते हैं। कई जो माता पिता हैं, अभी तुम जो भी करना है कर लो, अनइन्वॉल्व रहते हैं, ये भी गलत है। कभी जो है बिल्कुल परमिसिव, दबे दबे। तो इन तीनों को जो है अथॉरिटेटिव, जो है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, हर चीज का एक बैलेंस होता है। तो वहां पर हमको ये समझना है कि कितना दबाव, कितना प्यार, दोनों जरूरी है। प्यार भी जरूरी है, थोड़ा डिसिप्लिन भी जरूरी है ना। तो यहाँ पर धीरे अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे, है ना। सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पर आए, कोई क्वेश्चन है तो जरूर मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले मेरा फोन नंबर जरूर नोट कर लीजिए, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, या 9823876842, 9823876842। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, है ना। जैसे विली सर ने कहा है कि आई एम हियर ओनली इन बोईसर, तारापुर, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी फॉर एनी हेल्प। यहाँ पर मैं अभी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और आपके साथ डायरेक्टली जुड़ता हूँ। कोई सवाल है ना। मुझे मालूम नहीं है आपको प्रोग्राम कैसा लगा, है ना। और मैं चाहता हूं कि अभी मैंने तो बहुत चीजें बताई है, बट आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है ना, आज एक बहुत सुंदर मौका है। इस साल के अंतिम दिनों में कुछ चर्चा करें। ऑफ कोर्स शायद भूख भी लगती होगी शायद आपको, मुझे मालूम नहीं, but maybe we can spend 10-15 minutes. Any questions related with child, any behavior also, कोई भी सवाल। So very beautiful session, sir. मैं इस कुर्सी से हिला भी नहीं. I was just paying so much attention to everything you said. हर एक शब्द में, हर एक word में, आप there was so much information there, and हर एक जो आपने word बोला, हर एक sentence में एक reflection है, एक सोच है. And I think काफी सारे parents को भी यही लग रहा है. There was one question, sir, जो Yes. somebody was asking कि मेरा बच्चा भी कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेता है किसी में. आई एम अज्यूमिंग वो थोड़ा टीनेज स्टूडेंट होगा. Okay. कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है पढ़ाई में. दीपाली पाटिल, गीता जैन मैडम, रेखा सामसी, सुमिता मिश्रा, कोई भी सवाल सर के लिए है अबाउट बच्चों का अपब्रिंगिंग में, बच्चों के परवरिश में, प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं सर से. Another question is क्या आप पेरेंटिंग कोर्स कंडक्ट करते हो? That is one question from Mr. Nilesh. Yes. Yeah. Okay. जरूर जरूर आप मुझे अप्रोच करिए, है ना। जो भी है, we are here. Definitely we are conducting parenting sessions for even corporates also, or even for anything, even for schools also. Even if you have a group of people also there also. You just tell me, sir, please give some time and I am there. Don't worry. और कुछ सवाल डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए. एनी क्वेश्चंस? ये बहुत सुंदर मौका है. बिली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि हम लोग इतने जुड़ गए हैं इस 1-1.5 घंटे में. काफी हम, जबकि हम एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं, बट इवन देन वी आर कनेक्टेड विद दिस वंडरफुल सेशन. और कुछ क्वेश्चन? सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको मेरा प्रणाम. आप मुझे मेरे बचपन की तरफ ले गए
और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक्स नहीं कहूंगी क्योंकि वो शब्द बहुत छोटा है। आपने जो कुछ आज बोला वो मुझे मेरे पूरे अतीत की तरफ ले गया, और फिर से आपने उन सारी चीजों को याद दिलाया जिन्हें मैं आगे जरूर अपनी जिंदगी में उतारूंगी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने एटलीस्ट बात किया। मैं देख रहा हूँ कोई बात ही नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और जीवन में देखिए छोटी छोटी चीजें जो है हमको भी अतीत में लेके जाती है। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, मैं भी अपने बच्चों के साथ बड़ा हुआ हूँ। और कभी कभी लगता है आज इस उम्र में मुझे लग रहा है कि यार मैंने भी काफी, मुझे काश मैं और थोड़ा उनके साथ खेला होता, काश मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताया होता। मैंने भी वो गलतियां करी, मैं नहीं चाहता कि आप वो करें। दैट्स हाउ वी लर्न। आपकी बातें सुन के उन गलतियों की तरफ फिर ध्यान गया कि हाँ ये हम गलत करते हैं। हाँ, और बार बार पीछे भी मुड़ के नहीं देखना है, हो गया, बट आई हैव लर्नड आल्सो, दिस इज माय एक्सपीरियंस, और हम उससे कुछ सीखे हैं, जी हाँ, है ना? जी बहुत सर, सुंदर, वेरी गुड। Sir, on Hello, Facebook, sir. Hello, one sir. speaker, one madam has said, her name is Nidhi Wadhwa. She said, "Sir, I will look to follow every advice that you have given." So, impact of your work is visible. Thank you, There Nidhi was ma'am, someone. thank you, thank you. Hello, sir. Can I say something, sir? Please, please, Yes. please. Sir, it was a wonderful session. Really, as a parent, as a teacher, as a mother, I have learned a lot from your session. And, it was inspiring. It was wonderful. Each and every steps you have explained, you have elaborated with illustrations, with good examples. And we sometimes tend to think that we know everything, but actually you have made us aware about everything, that how we should, you know, build the root and the fruit. I love that topic. I also love that 3 E's, which Yes. are very important to develop the personality. So thank you so much. And it was a wonderful session. It was awesome session. Thank you so much, sir. Most welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Ankita. Yeah, good evening, sir. This is Yukta here, and the session was really very emotional. You know, at some moments, I even had tears in my eyes while watching the videos and all. And being a teacher and a parent, okay, one question comes to my mind that, see, as a teacher, we motivate the students, we give them values. But when we see around so many things happening, and then we wonder that whatever we teach them, जैसे कि जब हम आपने बताया जैसे आप स्टोरीज बोलते हो, जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं या कुछ, तो हम भी इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों को भी उस तरह से पढ़ाते हैं। बट देन कभी-कभी ये ख्याल आता है जब वो बड़े हो जाते हैं, लाइक आई एम टीचिंग फ्रॉम 6th to 10th ग्रेड, तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड अलग-अलग मतलब लेवल के बच्चों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इट्स लाइक कि कभी जब वो 6th में होते हैं और वही बच्चे जब 9th-10th में जाते हैं, तो उनमें डेफिनेटली चेंज आ जाता है। बट वो जो वैल्यूज हमने सिखाए, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो सोचते हैं कि अरे लेकिन मैम तो ऐसे बोलती थी, बट यहाँ पे इर्द गिर्द ऐसा सिचुएशन है, सो उसके लिए अगर आप कुछ बोले तो आई डोंट नो, मतलब उन पे क्या इफेक्ट होता है। उसमें एक यही है, बहुत सुंदर आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि जैसे एक स्टूल है, स्टूल में 4 पाए हैं। आपने अपना काम तो कर दिया, टीचर एज ए टीचर आपने बहुत सुंदर किया, एवरीथिंग यू हैव डन, बट उधर जो 4 पाए में एक पाया है पेरेंट्स का, एक पाया है टीचर्स का, एक है समाज का, और एक है स्कूल का। ये सब मिलके जो है स्ट्रांगली यदि रहेंगे, चारों यदि बराबर रहेंगे ना, तो आपकी जो बताई हुई 6वीं 7वीं की बातें वो 10वीं क्या जिंदगी भर याद रखेगा। बट क्या होता है कि वो 6वीं 7वीं के बाद वो सडनली एक डिफरेंट माहौल में आ जाता है, जहां पर शायद उसको सपोर्ट पेरेंट्स से नहीं मिलता है या समाज से नहीं मिलता, और कुछ कुछ गलत एग्जाम्पल्स के जरिए फिर वो बोलता है कि अरे सच का कहाँ जमाना है, झूठ का ही जमाना है। कभी कभी हाँ, तो आपकी जो बताई, ये कभी मत सोचिए कि आपके द्वारा बताई हुई चीजों की वैल्यू नहीं है। वो इंसान जिंदगी में कभी ना कभी याद रखेगा कि यस नहीं, वैसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे बच्चे अभी भी, मतलब जो पास होकर गए 10th में, अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। वो जो रिस्पेक्ट मिलता है, दैट इज यू कैन नॉट एक्सप्रेस।
क्योंकि Yes. वो अभी भी याद करते हैं। बट बिल्कुल मेरा सवाल यही है कि जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे, व्हाट यू सेड, correct, यू नो, क्योंकि अभी हम टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे, बट वही बच्चा वो उस एनवायरनमेंट में जा रहा है जहाँ पे उसको वो सब नहीं मिल रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो इट इज लाइक कि सबने मिलके ये करना ऐसा है। सुंदर वर्ल्ड बनाना चाहिए। Sure. दैट इज इट। True, Yeah. true, true. Thank you so Thank you so much. for such a lovely this thing. Good मैं evening, Rao sir. Very good evening. Very good evening. Rajnish here, sir. Oh, Rajnish. Oh, yes, yes. Sir, first of all, it was very fantastic session, and I learned so many points which I have not focused right now. So it will help me to have a good parenting. First of all, Yes, yes. मेरी वाइफ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। क्वेश्चन जरा आप आंसर करेंगे तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। सर सेशन तो बहुत अच्छा था। जो आपने बताया वो मैं रोज घर पे बच्चों को भी बताती हूँ, खुद भी अपना ये थोड़ा बहुत स्टडी करती हूँ कि हमें कैसे करना चाहिए ताकि बच्चों की लाइफ अच्छे से हो। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप बता रहे हो वो हम भी बच्चों को बताते हैं, बट उसका डायरेक्टली अच्छा इफेक्ट हो इसके लिए हमको उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और अच्छे से। अच्छा, आपका बच्चे की एज क्या है? मेरा बच्चा एक 12 इयर्स का है, एक 16 की है। 16 की है। बेटी 16 की है और बेटा 12 का है। ओके, तो आपका क्वेश्चन आप एक एग्जांपल के जरिए बोल सकते हैं? गिव मी जस्ट वन एग्जांपल। सर जैसे आप बताएंगे कि अभी मोबाइल कम देखना चाहिए, मैं भी यही चीज रोज बताऊंगी सपोज बच्चा जब Okay. उसे भी पता है कि मम्मी ये गलत है, मुझे नहीं करना है, बट वो इस चीज से उतना दूर नहीं हो पा रहा है जितना जल्दी से अपना इफेक्ट हो जाए कि हाँ मम्मी कह रही है ये राइट है, हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर देखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए। तो उस पे हम किस तरह से अटेंशन दे कि वो उस चीज को जल्दी से समझे और अपना फोकस चेंज करे। हाँ, सो एक तो क्या है, कोई भी चीज करने के लिए ना उसका कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। मोबाइल मत यूज करो, this is your direction, it will not work. What will be the consequences if I use the mobile more? उस पे थोड़ा सा प्यार से, क्योंकि देखिए अभी मोबाइल भी एक स्कूल में भी चालू हो गया है, इवन कॉलेजेस में चालू हो गया, होमवर्क शुरू हो गया, उसके ट्यूशन क्लासेस शुरू हो गए, तो पूरा लाइफ ही मोबाइल हो गया है ना। हाँ सही है। और हो सकता है कभी कभी हमको ये लगता है कि वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, मे बी वो बेचारा होमवर्क देख रहा है या उसका क्लास वर्क देख रहा है, बट समटाइम्स सम पेरेंट्स हैज ए प्रोबिंग नेचर कि मालूम नहीं क्या देख रहा है। हैव ए ट्रस्ट, हैव सम लिटिल बिट, थोड़ा सा उनको प्यार के, जब भी वो मूड अच्छा रहे, बेटा इतनी ज्यादा कभी कभी आंखें खराब होती है, आंखों की रोशनी में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक दैट यू कैन इन्वॉल्व हिम एज ए डिसीजन मेकर, है ना। वो सडनली नहीं होएगा। मुझे ये भी पता है सर वो क्या देख रहा है और किस टाइम क्या कर रहा है, ये भी पता है, बट मैं उसे जैसे गलत चीज देख रहा है तो मैं उससे थोड़ा हटाना चाहती हूँ। जैसे फ्री फायर खेलता है, अभी लॉकडाउन है, काफी टाइम बच्चों का घर में ही रहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा खेले, पर थोड़ा इन्वॉल्व होते होते उसमें भी जैसे ऐसे स्टेज आते हैं कि हमें और अचीव करना है, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता उसमें है। लग जाता। हाँ, वो तो गेम्स उसको ही लगता वैसे है हैं। कि मैं इसमें अगर आधा घंटा और देता हूँ तो मैं उस स्टेट डायमंड उस पे लेवल पे पहुंचता हूँ, पहुंच जाऊंगा, हाँ, या डायमंड पे पहुंच स्टडी जाऊंगा। जैसे आधे घंटे बात कर सकता हूँ, तो वो भी एक सेटलमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता है, पर उसका जैसे इससे फोकस थोड़ा सा कम करके हम उसको राइट डायरेक्शन का फोकस दे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसका मोबाइल हटाए हम, बट उसको थोड़ा सा राइट डायरेक्शन और दे, तो उसके लिए हम उसको कैसे ट्रीट करें तो उसको जल्दी उसको एक प्रॉपर, देखिए हम ज्यादातर कभी दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है, अभी उसको यदि मेन लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, ये अचीव करना है, यदि गोल ज्यादा पावरफुल होगा ना, तो ये जो सब गोल्स हैं ये वीक होंगे। इसका मतलब हमको हमारा जो मेन लक्ष्य है, और उसको क्या चीज इंटरेस्ट लगती है वैसे, कुछ अदर हॉबी? Other hobbies, he used to play badminton and अरे वाह, swimming. तो
ये तो बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि अभी एक तो अनफॉर्चुनेटली हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बट बस इफ यू वही कैन, सर, इसीलिए मैं आपसे हाँ, पूछ रही हूँ बट कि हम इवन देन कैसे नाउ, फोकस करें कि हमारी चीज उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करे थोड़ी। maybe you can involve him some good badminton coaching or something, maybe some swimming coaching. Take him little bit with precaution outside also. Now things are little bit take precaution, and he can do play badminton also. So So the we are time. having some location constraint at Veraval. You Oh, may ho, be ho. knowing. Okay, So okay. it's a very remote location, and such coaching are not available at. And because of this COVID situation, we are also having some fear not to send outside out of our colony Yes. premises. True, true, true. Anyway, thank you, sir. Thank you No, no, very much. most welcome, most welcome, most welcome. एक्सीलेंट। एक चीज जो सर ने बताया, राव सर ने जो बताया, वो मेरे दिमाग में है। ये है कि एज पेरेंट्स आप बोलना बंद मत करो, कीप गिविंग देम वो अच्छे विचार, वो अच्छे आइडियल्स, वो प्रिंसिपल्स हमेशा बोलते जाओ, सोने के पहले, सोने के बाद, जब उठेंगे, एवरी टाइम। आज मैं जितना भी साल का हूं, मेरा मम्मी आज भी मुझे हर एक चीज पे मुझे अच्छी तरीके से करेक्ट करती है, अच्छी तरीके से प्रिंसिपल्स डालती है अभी भी, एंड वो हमेशा मेरे माइंड में वो प्ले करता रहता है। जब मैं सोचता हूँ कुछ भी, मैं बाहर से आता हूँ, अगर मैंने जूते एक साइड पे रख दिया तो भी मेरा माइंड में एक बार तो आता है कि मम्मी बताया है कि वहां पे रखो, या ऐसे रखो, या प्यार से कुछ काम करो। सो वी शुड नेवर क्विट। सर, जो आपने आज बताया कि हम एज पेरेंट्स वी शुड नेवर क्विट गिविंग दैट स्मॉल मॉरल्स टू चिल्ड्रन एवरी डे, एवरी डे। कोई घरों में करेक्शन का आदत नहीं है बच्चों। कितने सारे लोग ऐसे बोलते हैं मुझे तो सुनने का आदत नहीं है। कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, कितने मैंने लोगों से मिला है जो 30, 40, 50 इयर्स के बोलते हैं हमको तो सुनने का आदत नहीं है। बट सुनने का आदत डालो, क्योंकि आपके भलाई के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, और there is something good about it. I want to invite Dr. Ajit Samuel just to say some few words about today's session, maybe a vote of thanks, anything that you found very good. Sir, एक क्वेश्चन है इधर, एक आंसर दे देता हूँ। Yes, sir, please. So this is my son is doing preparation for IIT online classes. He's going on. However, he's thinking that he will not succeed unless offline. मैं बता रहा हूं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कई दूर दराज गांव में एक किसान की बेटी घर में बैठकर आईएएस कलेक्टर बन सकती है। हाँ, एक बर्तन मांजने वाली की बेटी डिप्टी कलेक्टर बन सकती है ना? हम क्यों नहीं? ऑफलाइन हो ऑनलाइन, ये तो अभी हुआ है। बच्चों में चाहिए सिर्फ एक थोड़ी सी, उस बच्चे को बोलिए बेटा चिंता मत करो, आईआईटी तुम जरूर पास करोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इट नीड्स ए लिटिल बिट एनकरेजमेंट, मोटिवेशन। हम सबको भी ये डर लगता है पास होंगे कि नहीं होंगे। थोड़ी सी आप भी अपना हिम्मत मत खोइए, अपने बेटे पे जरूर विश्वास रखिए, और कभी जरूरत होगी तो उसको मुझसे भी बात करा दीजिए, है ना? मैं भी तो शायद थोड़ी बहुत मदद करूंगा। जरूर मेरा नंबर नोट कर लिया होंगे आपने, और जरूर मुझसे बात करवाना। आप चिंता मत करो, जरूर पास होएगा वो। Great. Dr. Ajit, any vote of thanks, any ideas, anything that inspired you? सर आप म्यूट में हैं। Dr. Ajit, you're on mute. You need to unmute if people have to hear you. Joy, in the meanwhile, while Dr. Ajit is figuring out his tech, how are you building self-esteem in the children in the school? As a school, how do you, as a principal or a teacher, how do you build the self-esteem in children, Joy? Okay, it runs through absolutely everything we do. So we give children the chance to speak up. We have a very positive outlook. I liked what Mr. Rao said about being positive. So even our rules are positive. So instead of saying do not run, we say walk in the corridors. And so we look at the positive of what to do, not what not to do. And the children are just free to come and give us ideas. So we had some children last term that they wanted to do a school magazine. So they wrote me a letter and said, can we do this school magazine? This is what we want to do. And we said, yeah, great, let's have a go. And so they know it's a safe place to try things.
It's a safe place to give it a go. And of course, they'll learn as they do it, and they'll, make mistakes, okay, but they learn from those mistakes. Fantastic. I also feel like as a school, हमें ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे अलग-अलग फैमिली से आते हैं, अलग-अलग एनवायरनमेंट से आते हैं. कुछ बच्चों को वो प्यार और वो कंपैशन और वो एनकरेजमेंट मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे उसके लिए तरसते हैं. तो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्कूल, हमारा जॉब ये भी है कि हम बच्चों को वो प्यार, वो एनकरेजमेंट, वो नरिशमेंट हम पॉजिटिव स्ट्रोक्स के द्वारा हम उन्हें स्कूल में दें. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि शायद हो सकता है जो उन्हें घर से नहीं मिल रहा, वो एक टीचर, वो एक प्रिंसिपल से वो मिल सकता है. एंड इन सम वे हम बच्चों को बचा सकते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट as a school we must always be careful about. Dr. Ajit, we see that you have unmuted yourself successfully. Good evening, all of you. Good evening. Good evening, sir. Today's program was something which I really felt was quite informative and quite action focused. The couple of things I really liked about the program was, one of the times you said, act, don't react. This is a major problem with a lot of parents today, because we have our own kind of preoccupations and our information systems. By virtue of that, we start believing that there could be a lot of wrong things that could happen instead of the lot of good things that could happen. So what happened, before the child has got an opportunity, we preempt. तुम ऐसे गलत कर रहा, तुम वो कर रहा, तुम ये कर रहा, बच्चा बोल ठीक है, फिर मैं ये सब करूंगा. So we should not react. We should act as parents. Second thing, parenting happens like extempore. It is not something that you can do extempore. You should have a plan, but you should not tell the child that I have got a plan for you. Then child will always think, how to break this plan. Yes. So you should have a plan, but you should go as natural as you can, so that you orchestrate the things. You don't try to tell them, ऐसे करो तभी तब ठीक है. बच्चा बोला मैं गलत करके देखूंगा, फिर पता करूंगा ये क्या गलत है, क्या सही है. So you should basically become a facilitator than a dictator when it comes to children, which you clearly articulated today. So overall, the program was really good. If parents start adopting it in their day-to-day life, their children could reach the stars. What else I could say, because it's so good. So thank you, sir, for the wonderful program that you gave today. And it was a lot more deeper than I thought that anybody will give. You had a clearly written script because you cared for the parents so much, or you cared for the children so much. Thank you so much for taking so much of care, patience, efforts, so that you could make a better voice today, tomorrow, and the days to come. Thank you once again. Thank you, Dr. Ajit. And for everybody who's listening in today, this was the last and final speaker for Boycer Brilliant Boycer Season 2. I want to share that there's a fabulous closing, very powerful speaker and very powerful ideas. जो ideas हम घर लेके जाके from this minute on आप session बंद करके आप अपने बच्चों को hug them, give them a kiss, tell them that you love them and restart. कंप्यूटर में कैसा होता है? Restart. कुछ भी बंद हो गया, नहीं चल रहा है, restart. Just restart, reset. And जैसा सर ने बताया, जब आँख खुली तब सवेरा था. I think that there is no bad time. This is all in perfect time. I want to tell you that we are now doing Shining Nalasopara. Wow. Because nice. Some people are saying, why only Brilliant Boycer? Why not Nalasopara? So we're doing Shining Nalasopara from January 4th to January 9th. We have 5 very cool speakers. Our first speaker, who is going to come in on the 4th of January, his name is Siddharth. वो हमारे स्कूल के ex student है और वो drones का engineer है, वो drone बनाता है. So he's going to talk about drones, कि drone कैसे बनाते हैं, वो उड़ते हुआ जो छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा चीज. उसके बाद भी है दीपेश कामले, जो हमारा एक स्टूडेंट है, वो रैपर है, वो रैप गाने लिखता है. तो he is going to take a session with us on how इंस्पिरेशन मिलता है म्यूजिक से, हम कैसे रैप गाना बना सकते हैं, एंड हम रैप गाने से हम सोशल चेंज कैसे कर सकते हैं.
वो उसके बारे में बात करेगा. Then we have another speaker called Troy. Troy एक सुपर कार और सुपर बाइक का enthusiast है और वो हमें बताएगा कि बच्चों को बाइक्स और कार्स के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन देगा और डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में बताएगा ताकि हम बच्चों को थोड़ा सेफ रख सकते हैं. जैसे ही वो 18 साल का उम्र आते हैं उन लोग आपसे सिर्फ एक चीज पूछते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी. तो वी नीड टू इंश्योर कि वो बच्चों का माइंडसेट गाड़ी चलाने का, गाड़ी ओन करने का, ड्राइविंग का. काफी लोग बोलते हैं जिंदा तो जिंदा, अगर कुछ होना है तो वो भगवान का. ये नहीं, इट्स अबाउट आवर सेफ्टी. इट्स नॉट ओनली अबाउट नसीब, राइट? इट्स आल्सो अबाउट प्लानिंग. So that is one speaker. And then we have another speaker whose name is Rohan Rokade. He's a पिछले 15 साल से वो डांस, नालासोपारा को डांस के मैप में वो आगे लाया है. He is going to talk about पिछले 15 साल में उसने क्या स्ट्रगल्स किए, वो क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस हुआ उससे, क्या फेलियर्स हुए हमारे बच्चे और नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए. एंड द लास्ट स्पीकर इज मिस्टर चिराग पांड्या जो हमें विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स के बारे में सिखाएगा और बताएगा ताकि आप अगर आपको फिल्म प्रोडक्शन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं पे भी अगर आपको काम करना पड़े और आप अच्छे एक्टर नहीं है तो भी कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है. दैट इज शाइनिंग नालासोपारा. आई एम सो हैप्पी, राव सर, that you accepted our invitation. You came fully prepared and you came with authentic stories. Authentic stories. सच्चा दिल से आपने जो स्टोरीज बताए हम सबको आपने लुभा लिया है. And you are making a big difference to the lives and futures of so many children. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye and see you at Shining Nalasopara if you all would like to join. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.